Yes. So, financial market, first point, concept of financial market. A financial market is a market for the creation and exchange of financial assets. Financial market exists where a financial transaction occurs. Financial transaction could be in the form of creation of financial assets such as an initial issue of share or debenture by a firm, or the exchange of existing financial assets like equity share, debentures and bonds. A business is a part of an economic system that consists of two main sectors, that is household, which saves fund, and business firms, which invest these funds. So a financial market help to link the savers, that is the households, and the investors, that is the business firm, by mobilizing fund between them. Mobilizing fund means to move fund from household to business firms to household. In doing so, it performs the allocative functions. It allocates or direct fund available for investment into their most productive investment opportunity. ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, एक लिंक, एक ब्रिज क्रिएट करता है बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस फर्म. इन्वेस्टर्स जिनके पास में अपना मतलब सॉरी हाउस होल्ड जिनके पास में अपना पैसा सेव होने के लिए रखा हुआ है, उनके पास में पैसा, उनकी सेविंग पड़ी है, अपने को उसको इन्वेस्ट करना है कहीं पे, वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. और बिजनेस फर्म्स जो है, उनको पैसे की नीड है, वो कहीं से बोरो करना चाह रहे हैं. तो फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक क्रिएट करता है दोनों के बीच में, जहां पे आके हाउस होल्ड्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहां से बिजनेस फर्म्स पैसे बोरो कर सकती है. ठीक है, ये चीज अपन कल पढ़ चुके थे. Then consequences of allocative function. When the allocative function is performed well, two consequences follows. The rate of return offered to the household would be higher. Scarce resources are allocated to those firms which have the highest productivity for the economy. ये सिंपल पॉइंट है कि अपनी अलोकेटिव फंक्शन जब अप्लाई होगा, तब उससे क्या होगा, एक तो जो रेट ऑफ रिटर्न जो हाउस होल्ड्स को मिल रही है वो सबसे हाईएस्ट होगी, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फॉर्म्स को अलोकेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाई हाई प्रोडक्टिविटी. ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ अलोकेशन ऑफ फंड इज वाया बैंक और वाया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कि बैंक मतलब अपने जो हाउस होल्ड्स हैं वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, या तो बैंक के अंदर या फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर. अगर बैंक में कर रहे हैं तो हाउस होल्ड कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद बैंक्स हु इन टर्न कुड लेंड दीज फंड टू बिजनेस फर्म्स. वो अपना पैसा बैंक में दे रहे हैं और बैंक वाले वो पैसा किसको लेंड कर देंगे, बिजनेस फर्म्स को. और सेकंड है वाया फाइनेंशियल मार्केट. हाउस होल्ड्स कैन बाय द शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफर्ड बाय अ बिजनेस यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट मतलब अपना स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से जो अपने हाउस होल्ड्स हैं वो शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज करेंगे जो बिजनेस फर्म्स ने इशू कर रखे हैं फॉर रेजिंग मनी. ठीक है. देन नेक्स्ट, thus banks and financial market are competing intermediaries in the system and give household a choice of where they want to place their saving. ठीक है. functions of financial market. first है allocative function. allocative function का मतलब mobilization of saving and channelizing them into the most productive use. A financial market facilitates the transfer of saving from savers to investors. It gives savers the choice of different investment and thus helps to channelize surplus fund into the most productive use. जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो क्या करता है, जो वो सेवर्स को अलग अलग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप इधर मल्टीपल जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फंड्स को. और जो भी जहां पे सबसे प्रोडक्टिव यूज हो रहा है फंड का, मतलब जहां से सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, इन्वेस्टर अपने अकॉर्डिंग उस सोर्स ऑफ मतलब फंड के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है. सेकंड, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी. In the financial market, the household are suppliers of fund and business firm represents the demand. The interaction between the forces of demand and supply helps to establish a price for a financial asset being traded in the financial market. फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कोई भी असेट, कोई भी जो कोई भी चीज है उसकी रेट कैसे डिसाइड होती है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कितनी है. अगर आप लोग जैसे स्टॉक एक्सचेंज खोलोगे कभी, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर. मतलब अगर केवल बायर्स खड़े हैं
ठीक है, केवल बायर खड़े हुए हैं। आपको कभी भी कोई शेयर मार्केट की एप्लीकेशन खोलना तो नीचे मार्केट डेप्थ अगर आप खोलोगे तो मार्केट डेप्थ में आपको बायर्स और सेलर्स दिखेंगे, है ना। तो किसी भी शेयर के अंदर अगर बायर्स खड़े हैं और सेलर कम है, बायर ज्यादा है, तो शेयर की प्राइस ग्रो करती जाएगी, मतलब वो शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी। और अगर वाइस वर्सा सिचुएशन है, दैट मीन्स अगर सेलर ज्यादा है और बायर्स कम है, तो उसकी प्राइस रिड्यूस होती जाएगी। एक पॉइंट कई कई शेयर्स में ऐसा भी आता है जब केवल बायर्स अवेलेबल होते हैं, सेलर्स अवेलेबल नहीं होते, तो बायर पैक लग जाता है। बायर पैक लगने का मतलब हर हर शेयर की सेबी ने एक गाइडलाइन फिक्स कर रखी है कि उसकी मिनिमम कितनी परसेंटेज वो एक दिन में ट्रेड कर सकता है, 5% जितना, 10%, 15%, 20%। मतलब वो ये रेट क्या डिसाइड करती है कि वो शेयर जो है, पर्टिकुलर वो शेयर जो है, वो उस दिन के अंदर उतना ही ट्रेड हो सकता है, मतलब 5% ऊपर या 5% नीचे। 5% हिट होने के बाद में उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो जब भी बायर पैक लगता है, बायर पैक लगने का मतलब ओनली बायर्स आर देयर एंड नो सेलर इज अवेलेबल। कोई भी अपने माल को बेचना नहीं चाहता, सब जने ये माल खरीदना चाहते हैं। उस सिचुएशन में 5% उस शेयर की जो भी रेट चल रही है, उस रेट से 5% वो बढ़ता है, और 5% बढ़ने के बाद में उस शेयर में ट्रेडिंग बंद हो जाती है। वाइस वर्सा, अगर सेलर पैक लगता है तो जो भी करंट मार्केट प्राइस थी उस शेयर की, वो करंट मार्केट प्राइस में से 5% डाउन हो जाता है, और 5% डाउन होकर उस शेयर में ट्रेडिंग बंद हो जाती है। तो फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी का मतलब, प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है, कोई भी प्राइस कैसे फिक्स होती है, बाय बायर्स एंड सेलर्स, मतलब विद द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जितनी मार्केट में सप्लाई होगी, मतलब फंड जितना अवेलेबल होगा, और जितनी मार्केट में डिमांड होगी कि बिजनेस फर्म्स को कितना पैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज की रेट डिसाइड होती है। Then next, providing liquidity to financial assets. Financial market facilitates easy purchase and sale of financial assets. In doing so, they provide liquidity to the financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. Holder of asset are readily sell their financial asset through mechanism of financial market. कहने का मतलब, ये जो जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स होती है ये हाईली लिक्विड होती है। मुझे जब भी फंड की जरूरत है मैं फंड रेज कर सकता हूँ इनको सोल्ड आउट करके। जैसे आज शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में अपने को शेयर्स, अपने पास में शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स अपने लिए क्या है, अपनी फाइनेंशियल एसेट्स है। ठीक है, अब मुझे फंड की जरूरत है, मैं किसी भी टाइम मुझे फंड की जरूरत है, मैं शेयर मार्केट में मेरे शेयर्स जो हैं वो जो भी रेट पे चल रहे हैं उस रेट के ऊपर बेचूंगा और फंड फंड रेज कर लूंगा, मेरे पास फंड हाथ में आ जाएगा इन कैश। So these provide liquidity to the financial assets. Then next, reducing the cost of transaction. Financial market provide valuable information about securities being traded in the market. It helps to save time, efforts, and money that both buyers and seller of a financial asset would have to otherwise spend to try and find each other. The financial market is thus a common platform where buyers and sellers can meet for fulfillment of their individual needs. रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब, अभी तो जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के अंदर एक ही प्लेस के ऊपर मेरे को हर तरीके की सिक्योरिटी ट्रेड करने का तरीका हो जाता है। मैं एक ही जगह से सारी तरीके की सिक्योरिटीज को डील कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। अगर शेयर मार्केट नहीं होता और फिर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पड़ते, या मैं कोई शेयर खरीदता, मैं कोई डिबेंचर्स खरीदता, मैं कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता, तो जब मेरे पास में कोई एक पर्टिकुलर जगह ही नहीं है जहां पे मैं जाके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरे को ढूंढने में, मतलब अलग कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, किस कंपनी के शेयर की क्या प्राइस चल रही है, किस में कितना रिटर्न मिल रहा है, कौन किस रेट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है, ये सब पता करने में भी बहुत टाइम जाता, ढूंढने में भी बहुत टाइम जाता, और इन्वेस्ट करने में भी बहुत टाइम जाता। तो ये क्या करता है, अपना टाइम और पैसा दोनों बचाता है। एक ही जगह के ऊपर बायर्स भी, अपन जैसे अपन लोग एज अ शेयर होल्डर्स, अपन इन्वेस्टर्स भी, अपन ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा दिया, सारी कंपनीज ने भी अपने को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा दिया। अब मुझे किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है, मैं सीधा स्टॉक एक्सचेंज खोलूंगा और स्टॉक एक्सचेंज से जो भी कंपनी का शेयर खरीदना है वो खरीद लूंगा। मुझे पर्सनली वो कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है कोई भी शेयर खरीदने के लिए या कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने के लिए। देन नेक्स्ट, टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये भी अपन ने कल पढ़ा था एक बार। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज, फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। देन कैपिटल मार्केट को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो अपन पढ़ते हैं एक एक करके, चलो।
Financial market are classified on the basis of maturity of financial instruments traded in them. Instruments with a maturity of less than 1 year are traded in the money market, and instruments with longer maturity are traded in the capital market. अब देखो मनी मार्केट पढ़ेंगे अपन. Money market is a market for short-term funds which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year. मनी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज डील होती है जिनकी मेच्योरिटी एक साल या उससे कम हो. It enables the raising of short-term fund for meeting the temporary shortage of cash and obligations and the temporary deployment of excess fund for earning returns. एक सेकेंड रुकना. पूरा मार्केट क्रैश हो रहा है. Yes. Money market is a market for short-term fund which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year. It enables the raising of short-term fund for meeting the temporary shortage of cash and obligations and the temporary deployment of excess fund for earning returns. मनी मार्केट से पैसा कब रेज किया जाता है? जब अपने को शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट हो या अपना कोई शॉर्टेज ऑफ कैश आ रहा है या कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करना है, तब मुझे मनी मार्केट से मैं पैसा रेज करता हूँ. उसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है? फॉर लेस देन 1 year. Major participants in money market are Reserve Bank of India, non-banking financial companies, large corporate houses, commercial banks, state governments, and mutual funds. Now, features of money market instrument. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी. अपने को कभी भी पैसे की जरूरत है तो अपन क्या करते हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लेते हैं कोई भी. दीज आर अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी. ये अनसिक्योर्ड होते हैं और ये शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी का पार्ट होता है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर लेस रिस्की. इनसे पैसा रेज करना, यहाँ से पैसा लेना रिस्की नहीं होता. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड. इनको मैं कभी भी कैश में कन्वर्ट करा सकता हूँ. देन अब देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या क्या है. 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं अपने को. कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल. एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट इज कमर्शियल पेपर. Commercial paper is a short-term unsecured promissory note negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period. It is issued by large and credit-worthy companies, financially strong companies to raise short-term fund at lower rate of interest than market rate. It usually has a maturity period of 15 days to 1 year. Purpose of fund raised through commercial paper is to provide short-term fund for seasonal or working capital needs or to meet the flotation cost of new issue of securities. Example, brokerage commission, printing of application and advertising. This is known as bridge financing. ये चीज भी अपन ने कल एक बार read out करी थी. The issue of commercial paper is an alternative to bank borrowing. It is sold at a discount and redeemable at par. तो कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? इनको अपन जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं. इसमें एक चीज मिस आउट हो रखी है. दीज आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स. ठीक है. तो कमर्शियल पेपर क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है विच इज नेगोशिएबल. वी कैन नेगोशिएट इट एंड इट इज ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन. जो भी उस कमर्शियल पेपर को लास्ट में एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी होल्ड करेगा उसको पेमेंट मिल जाएगा. ठीक है. इनकी मेच्योरिटी पीरियड 15 दिन से 1 साल तक होता है एंड दीज आर इशूड बाय फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस मार्केट के अंदर अच्छी हो. ये इशू किया जाता है टू रेज शॉर्ट टर्म फंड एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट. मार्केट में जो रेट चल रही है उस रेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी को अगर फंड रेज करना है तो वो कमर्शियल पेपर के थ्रू फंड रेज करती है. और कमर्शियल पेपर को से फंड रेज करने का पर्पस क्या होता है? या तो सीजनल या वर्किंग कैपिटल के अंदर अगर पैसों की कुछ कमी आ गई तो वो वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, या मेन
फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए, अगर अपन कोई भी कंपनी नया शेयर मार्केट में अपना कोई शेयर लॉन्च कर रही है या शेयर इशू कर रही है, तो शेयर इशू करने के टाइम पे कंपनी को ब्रोकरेजेस पे करनी पड़ती है, कमीशन पे करने पड़ते हैं, एप्लीकेशन प्रिंट करानी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, तो इसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। वो जो पैसा खर्च होता है वो क्या कहलाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए, वो फ्लोटेशन कॉस्ट रेस करने के लिए अपन कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, ठीक है। ये इशू कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का कमर्शियल पेपर है, 1 लाख रुपए का कमर्शियल पेपर है, तो वो इशू डिस्काउंट के ऊपर होगा और रिडीम एट पार होगा, मतलब मान लो 10% डिस्काउंट के ऊपर हो रहा है, तो 1 लाख का कमर्शियल पेपर 2 साल के लिए इशू हो रहा है ये आपको, तो वो आपको इशू कितने में हो गया, 10% डिस्काउंट पे, दैट इज ऑन 90,000। और जब दो साल बाद में आप इसको रिटर्न करोगे कंपनी को, तो आपको वापस कितने मिलेंगे, पूरे 1 लाख रुपए। So the discount which you have received is the interest earned on that particular commercial paper. So the more the discount, the more the interest you have earned on the commercial paper. जितना ज्यादा हेवी डिस्काउंट के ऊपर वो इशू होगा, उतना हेवी अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। देन सेकंड इज ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल के अंदर लिखा हुआ है इन्होंने जीरो कूपन बॉन्ड, एक मिनट रुको, कमर्शियल पेपर, अच्छा कमर्शियल पेपर में तो ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। A treasury bill is an instrument issued by Reserve Bank of India on behalf of central government। देखो treasury bills जनरली किसके लिए यूज होता है, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड की जरूरत होती है, तो वो विद द हेल्प ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ट्रेजरी बिल इशू करती है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। इट इज हाईली लिक्विड, हैज एन assured yield and negligible risk of default। Treasury bills can be issued with for a minimum amount of 25,000 and its multiple। ये 25,000 के मल्टीपल में इशू होता है। Treasury bills are also known as zero coupon bonds because they are issued at a price which is lower than their face value and repaid at par। देखो दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम होते हैं, दोनों डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और रिडीम एट पार होते हैं। बस ये जो है वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इशू किया जाता है, और जो ट्रेजरी बिल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इशू किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे फंड की जरूरत होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना फंड रेज करने के लिए इशू करती है वो क्या कहलाता है, ट्रेजरी बिल्स। और अगर कोई नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होगी वो इशू करना चाहेगी, तो वो क्या कहलाएगा, कमर्शियल पेपर। दोनों सेम होते हैं, दोनों जीरो कूपन बॉन्ड्स कहलाते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों कहलाते हैं, मतलब ये अपने साथ में कोई कूपन रेट नहीं चलती, मतलब इनके इनके ऊपर कोई रेट फिक्स नहीं होती कि 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। जितना डिस्काउंट पे ये इशू हो रहे हैं वो इनका प्रॉफिट है। अगर ये स्टार्टिंग में इशू होने के टाइम पे 8% डिस्काउंट पे इशू हो गए, तो 8% आपने अर्न करा, क्योंकि जब रिडीम करोगे तो एट पार पर होगा, मतलब 100% पर होगा रिडीम। अगर इशू करने के टाइम पे आपको 15% का डिस्काउंट मिल गया, तो वो 15% आपने कमा लिया। तो जितना भी डिस्काउंट आपको मिल गया उतना आपने कमा लिया, इनके ऊपर फिर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो डिस्काउंट है वही आपके लिए इंटरेस्ट है। दीज दैट इज व्हाई दे आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। So they are issued at a price which is lower than their fixed face value and repaid at par। The difference between the price at which the treasury bills are issued and their redemption value is the interest receivable on them and is called discount। For example, suppose an investor purchase a 91 days treasury bill with a face value of 1 lakh for 95,000। By holding the bill until the maturity date, the investor received 1 lakh। The difference of 5,000 between the proceeds received at maturity and the amount paid to purchase the bill represents the interest received by him। Easy था। Then third is call money। Now this is important। Call money is a short-term finance used for interbank transactions। Call money is a method by which banks borrow from each other to be able to maintain CRR, cash reserve ratio। कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी बैंक्स के बीच में यूज किया जाता है। मान लो किसी जैसे आईसीआईसीआई बैंक के और अपने अपने मालवीय नगर का एग्जांपल देते हैं अपन, तो अपनी स्कूल के पास में आईसीआईसीआई बैंक है, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एयू बैंक है ना। अब एयू बैंक को अगर फंड की जरूरत है, मतलब कोई कोई पार्टी आई जहाँ पे उन जो पैसे विड्रॉ करने के लिए आई, उस टाइम पे बैंक में पैसे खत्म हो गए, तो एयू बैंक को अगर पैसे की जरूरत है, तो वो हाथ पाथ उसने सामने आईसीआईसीआई बैंक से पैसे ले लिए। आईसीआईसीआई को जरूरत है, उसने सामने ईयू बैंक से पैसे ले लिए, तो
दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज कॉल मनी, ठीक है। इट इज रीपेबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days। मिनिमम 1 दिन के लिए लिया जाता है एंड मैक्सिमम 15 days के लिए लिया जाता है। एंड इट इज रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब अगर एयू बैंक ने आईसीआईसीआई से 3 दिन के लिए पैसे ले लिए, 2 दिन बाद ही आईसीआईसीआई को जरूरत पड़ी, उसने पैसे की डिमांड करी, तो एयू को उसको रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज known as call rate, and it is highly volatile rate that varies from day to day and sometimes even from hour to hour। जैसे शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट होती है, वैसे इसमें जो अपनी इंटरेस्ट रेट्स है वो भी फ्लक्चुएट होती है फ्रॉम आवर टू आवर और डे टू डे। एक सेकंड। Then there is an inverse relationship between call rates and other short-term money market instruments such as certificate of deposit and commercial paper. A rise in the call money rates make other sources of finance such as commercial paper and certificate of deposit cheaper in comparison for bank raise fund from these sources। तो क्या होता है, ये कॉल मनी जो होता है वो उनको चीप पड़ता है या इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो अगर सिंपल सा आप ये याद रखो, अगर कभी भी किसी बैंक को एकदम से पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपने नियर बाय बैंक से जो पैसा रेज करती है टू मेंटेन सीआरआर रेशियो और टू गिव पेमेंट टू एनी पार्टी, वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाती है, वो जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है वो क्या कहलाता है, अपना कॉल मनी, ठीक है। देन नेक्स्ट, अच्छा मेन चीज, जितने भी ये अपन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है, इनका मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है, ये प्रॉपरली आपको सब कुछ सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब तक याद नहीं करोगे और जब तक ये सारी चीजें नहीं लिखोगे कि इनका पर्पस क्या है, ये कितने टाइम के लिए इशू किया जाता है, मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है और इसकी एक्सप्लेनेशन, तब तक आपको कभी भी इसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सबका मेच्योरिटी पीरियड कितना है, क्या पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। Certificate of deposit are unsecured negotiable short-term instruments in bearer form issued by commercial bank and developmental financial institution. Certificate of deposits are issued during period of tight liquidity when the deposit growth of bank is slow but the demand for credit is high. They can be issued to individual corporations and companies. They help to mobilize a large amount of money for short period. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, दीज आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म। बियरर फॉर्म का मतलब क्या, ये बियरर फॉर्म, ये चीज वर्ड बार बार आता है। बियरर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी अपने हाथ में इस डॉक्यूमेंट को होल्ड करेगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। मतलब ये खरीदा मैंने था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैंने करा था। अब मान लो मैंने मेरी वाइफ को दे दिया, मेरी वाइफ ने अपने फादर को दे दिया, तो जब भी मेच्योरिटी पीरियड आया उस टाइम पे मान लो मेरे फादर इन लॉ के पास में अगर ये है और मेरे फादर इन लॉ जाके कंपनी के पास में जाते हैं ये पेपर लेके, तो उनको पेमेंट मिल जाएगा, भले ही खरीदा मैंने था मगर पेमेंट उनको हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बियरर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो भी उस टाइम पे होल्ड कर रहा है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी उसको पेमेंट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। These are issued by commercial bank and developmental financial institutions। ये हाईली लिक्विड होते हैं, ठीक है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ फंड को रेज करने के लिए इशू किए जाते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड्स। देन लास्ट इज कमर्शियल बिल। A commercial bill is a short-term negotiable self-liquidating instrument which is used to finance the credit sale of firm. It is a bill of exchange used to finance the working capital requirement of business firm। कमर्शियल बिल क्या होता है, देखो जो सिंपल अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था ना, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज कमर्शियल बिल। जब अपने पास में पैसा नहीं होता, अपन किसी से क्रेडिट पे कोई सामान खरीदने और क्रेडिट पे सामान खरीद के मैं उसको बिल इशू कर देता हूँ कि 2 महीने बाद का बिल रिसीवेबल है, 2 महीने बाद का बिल पेबल है, दैट इज नोन एज कमर्शियल बिल। अ कमर्शियल बिल इज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब, अगर मुझे कभी भी इसके अगेंस्ट में पैसे की जरूरत है तो मैं बैंक में जाके इसको डिस्काउंट करा के ला सकता हूँ। अपन ने पढ़ रखा है 11th क्लास में डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल क्या होता है।
तो दिस सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि जब भी फंड की जरूरत है ये अपने आप सेल्फ लिक्विडेट हो जाता है, मतलब आप बैंक में जाओ, बैंक में जाके आप इसको सबमिट करा दो, तो इसके अगेंस्ट में आपको उसी टाइम हाथ पैसा मिल जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस फ्रॉम इट। जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे बैंक के, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक अपने कट करेगी और रिमेनिंग अमाउंट पूरा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। अगर किसी भी फर्म के पास में वर्किंग कैपिटल नहीं है, मतलब कैश नहीं है पे करने के लिए, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या करती है, कमर्शियल बिल इशू कर देती है। तो ये जो पांचों पॉइंट अपन ने पढ़े, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। यहां तक का सबको समझ आया? यस सर। इजी पॉइंट थे। बस ये चीज ध्यान रखना, जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स अपन ने पढ़े, वो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हर इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या है, कितने मेच्योरिटी टाइम के लिए वो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, और उसका मीनिंग क्या है, ये तीन चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, है ना। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये तीनों चीजें कोट करनी है आपको। एक तो इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट आया उसकी डेफिनेशन, प्लस उसका पर्पस क्या होता है, वो क्यों क्यों इशू किया जाता है, और उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है। ठीक है। अब जैसे वो जो ट्रेजरी बिल वाला था, उसमें एक और पॉइंट याद करने की है कि इट इज इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000, कि वो 25-25 हजार के मल्टीपल में इशू किया जाता है। अब मेरे को 35,000 का इन्वेस्टमेंट करना है तो पॉसिबल नहीं है, 25, 50, 75, 1 लाख इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अपन आज की क्लास को यही एंड करते हैं। इसके आगे का जो कैपिटल मार्केट वाला पार्ट है, वो कैपिटल मार्केट का पार्ट अपन कल करेंगे। और किसी को कोई डाउट? सर एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे या थ्योरी पेपर? थ्योरी पेपर आएगा।